Bitcoin is very undervalued. तो not even 1% of the world's money is invested in crypto. मैं जितने भी लोगों से जाता हूँ ना, वो मुझसे पूछते हैं क्या मेटावर्स होगा? तो मैं ये बोलता हूँ यार वो ट्रेन तो कब की जा चुकी। $1 trillion की इकोनॉमी सिर्फ मेटावर्स बन जाएगी 8 years में। मेटावर्स होगा ये हमें पता है, क्या है? So you just told me that you went to IIM. Which IIM? IIM Bangalore. IIM Bangalore. Then you went to IIT Delhi. No, first IIT Delhi. Then IIM Bangalore. Yeah. Then you went to UK. Yeah. You worked there, and then you joined LSE. Yes, London School of Economics. That's number 1 for economics in the world. Correct. So सारे world के top colleges में you've been. Now I want to ask you कि ऐसा क्या सीखा in top colleges में which you feel a normal person जिसको नहीं मिलती इन्वेंट्री वो नहीं सीख पाता? One, obviously, you get great infrastructure. Okay. These colleges, because they're very well renowned, they're well funded, alumni is there, infrastructure is great. So infrastructure से can you infrastructure से अच्छे classrooms, okay, library books full, computers बहुत सारे हैं. So every resource is there. सारे resources हैं. Okay. They have a lot of money, so the one of the best teachers come there. So network of people is great. So IIT Delhi, as an example, has a great network of people. You can always contact them. कितना भी senior हो, कितना भी junior हो, you can easily contact them. And I think personally जो मैंने सीखा is कि अगर एक institute में जाना है, एक अपना target है, तो there has to be a plan, there has to be some discipline, and then when you follow that discipline, success can happen. It is not guaranteed. luck चाहिए, लेकिन वो अगर success मिल जाता है, तो आपका एक confidence, मेरा confidence boost हुआ कि okay, I followed the plan, I had the discipline, I got the success. So the next time I was even more motivated. The third time I was even more motivated, right? So, and when I've had a lot of failures in life, and when I had the failures, I was like, okay, it's fine. I know that I have had success, and now it's a failure, it's cool. But I know that success can happen, मैं वो plan follow करता रहूँगा. Okay. There was not at least for me, there was not a self-doubt. मतलब self-doubt होता है बहुत बार, but when you analyze तो ये होता है कि यार वो ऐसा doubt नहीं है, plan follow करते रहेंगे तो success आ जाएगा. Matter of time, matter of learning. Sometimes it's a matter of timing, luck वगैरह. So you feel one of the biggest thing which happened with you was कि because you followed a plan and got success that you got into these institutes, that gave you confidence कि मैं आगे भी और ऐसा बहुत चीजें कर सकता हूँ. बिल्कुल. I definitely think that that's important. तो एक saying होती है success begets success. Okay. Right? उसके I think 2 reason होते हैं. एक होता है कि when you are successful, you sort of get that confidence and belief that, I will be successful. And that energy, that whatever you call it, vibration, that confidence shows to other people. And then other people start betting on you. That's a bet that I'll join your team, I'll work with you, I'll become your partner, I'll give you money. And once that happens, your chances of success increase even further. Yeah. So it's a self-fulfilling cycle. जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे. तो फिर आपको लगता है अच्छा मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, सक्सेस और आ गया, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. That's why it's this success begets success. It's a self-fulfilling prophecy. Yeah. So I was also reading, actually I heard it somewhere, not read. I heard somewhere कि जो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हार्वर्ड हो गया, IIM हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, इट्स नॉट कि वहाँ पे जो जाता है वो वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट है या वहाँ पे जो जाता है उसका सक्सेस एकदम प्रॉपर है या नहीं है. इट्स जस्ट कि इट गिव्स लॉट ऑफ बिग पीपल अ फिल्टर टू चूज फ्रॉम. करेक्ट. क्योंकि as you said, like success begets success. A lot of successful people and wealthy people जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनको चाहिए कि अब मेरा नेक्स्ट वेंचर कौन लीड करेगा, या मैं नई चीज करूंगा तो मैं किसके साथ पार्टनर करूंगा, या मैं किस पे पैसे लगाऊं. अब इतना बड़ा वर्ल्ड है, there are 7 billion people. Where should I go? Let me go to some place जो ऑलरेडी लाखों हजारों लोगों में से फिल्टर करके बैठ चुके हैं. So it acts like a filter. It doesn't mean that just because you're there you'll be successful. It just means कि अगर आप वहाँ पे गए हो तो आप एक ऐसे filtered crowd में हो कि जहाँ से आपको everything can be easier for you. So मैं इसको this is the way I'll answer it. So there is a concept which is called necessary and sufficient. Okay. Right? So the way to say this is hard work and discipline is necessary for success, but it's not sufficient. What that means is if you do not work hard, if you do not have the discipline, definitely success won't happen.
But the fact that you have worked hard and you have had the discipline, it's a necessary condition. It's not sufficient. That also doesn't mean that you will definitely be successful. So exactly what you said, why it is a good filter is if you worked hard and you had the discipline, you may get into an IIT. So everyone who has gotten into an IIT, my belief is that they have worked hard and they have been disciplined. That does not mean that people who did not get into IIT did not work hard and were not disciplined. Because वहाँ पे, like I said, it's luck. It's that day. What was your mood? What happened in the exam? Maybe one question you picked up which was wrong, right? Whatever else. That maybe you were sitting too close to the window, too far from the window. You know, whatever. It could be many things. Yeah. Maybe in your exam room the light went off. It was sweaty. Whatever. Tons of stuff. Which is why the easier bet becomes. And unfortunately, in this world, people don't have too much time to filter out things, right? So they say, "Acha, there are already so many people from these colleges. We know that whoever has come to these colleges has worked hard and is disciplined. Yes, a lot of people who have not gone to these colleges also have worked hard, but it'll be a little more tough to assess them. So we'll just go with the easy choice." And I think that's the reason that there is this branding there. Right? Yeah. And also, I don't think we should underplay the fact that because they get that success, at least for that time in college, there is this confidence that they have on themselves, which does not necessarily mean that they will all become successful. Also, we have seen tons of people, Microsoft, Satya Nadella is a great example, tons of people not from IIT, not from the best colleges in the world, extremely successful. Yeah. Right? Like I said, it just proves that they have done hard work and discipline, not necessarily that they will be successful, and not necessarily that if someone is not from these colleges, they haven't done the hard work and discipline. Okay, so let's say everyone who's watching this, okay, I have two questions for like from an advisory point of view. Okay. What are first 3 tips you want to give to people who are trying to crack IIM or IIT? कि क्या होना चाहिए, ये 3 चीजें अगर तुम में है तो your chances are higher to get into IIM. मैं पहले IIT का बोलूंगा. Okay. तो see, one thing I'll say is कि डिसिप्लिन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद एक वो प्रेशर कम होना चाहिए आपके ऊपर. इट इज लाइक एनीथिंग इन लाइफ, देयर विल बी मेनी सक्सेसेस पीपल विल हैव एंड मेनी फेलियर्स, एंड एवरीवन विल हैव दैट. चाहे वो everyone from Elon Musk to Dhirubhai Ambani to Ratan Tata, they have all been extremely successful, but we only see the success, but I'm sure there are tons of failure that we do not see, right? So I, like, personally, I remember in my batch, there were much smarter people than me, much more hardworking people than me, who did not clear JEE. And if I think why didn't they do it, they put a lot of pressure on themselves. क्योंकि क्या था कि they were smart, they were hardworking. तो जब वो mock test देते थे, उनकी रैंक बड़ी अच्छी आती थी. तो धीरे धीरे सोसाइटी, क्लास, पेरेंट्स, सबके एक्सपेक्टेशन थे कि यार यही आएंगे अच्छे, यही करेंगे. तो एंड माई व्यू इज कि उनके ऊपर इतना प्रेशर ले लिया था ना उन्होंने अपने ऊपर कि व्हेन इट केम, उनकी परफॉर्मेंस इन एक्चुअल, वो था ना कि प्रैक्टिस में तो अच्छा चल रहा था, बट रियल लाइफ में जब वो आए तो वो खराब इसलिए हो गई कि वो मेंटल परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि उसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखो यार कि दिस इज जस्ट वन एग्जाम. हाँ, अच्छा है, क्लियर हो जाएगा, अच्छा है, बेनिफिट्स हैं उसके, नो डाउट, मैं ये नहीं मना करूंगा, बट लाइक एवरीथिंग वो तो हर चीज में होगा. जॉब आएगी, फिर ये करोगे. इफ यू आर अ स्टार्टअप, फिर आप बोलोगे पहला कस्टमर, पहली ऐप रिलीज, पहली फंडिंग, ऑल ऑफ दैट. You have to put it in context कि ठीक है, it's important, but it's not the end of the world. Yeah. A lot of people take every exam like this as the end of the world, and it affects your performance. So hard work, consistency / discipline, and take it in context, right? Like in the sense you don't put too much pressure on yourself. Okay. And actually, there's one more thing which I remember. I heard Jeff Bezos saying this. A lot of people say that we are very successful, but Amazon got built because of the failures. Correct. And he said that people only see that Amazon is the #1 subscription model in the world. Amazon has this, Amazon has that. They don't see that Amazon has at least 1,000 failed businesses. Correct. Yeah. We only got right once. Correct. And that is our biggest payer. Yeah. So Amazon, I mean, before AWS, their biggest money was coming from a subscription service called Prime. Yes. So they were charging people India में 99 and 999 for a year. 999 for a year. That is how they were making money. And उसके से Amazon profitable था. But उसके अलावा Amazon ने at least 50 कंपनी खरीदी है. उसके बाद at least 1000 experiments करे and they all were flop. So he said, one time we got right, 1000 times we were wrong. So people only see the one thing. Correct. That's absolutely true. It's like what Thomas Edison said, right? When he was
creating the electric bulb. Ki every time I failed, it was one more time that I knew what not to do. Right? तो वो वही था, वो फाइनली बन गया. See, I think this is the problem, right? कि यहाँ पे वो जजमेंट आती है कि ये थॉमस एडिसन का कोट भी फेमस इसलिए है कि उसने फाइनली बना लिया. अब अगर उसने 50,000 बार बल्ब बनाया होता और ये स्टेटमेंट होती कि नाउ आई नो 50,000 टाइम्स नॉट टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो लोग कहते हैं कि भाई आपसे हो नहीं पाया, आप रहने दीजिए. तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. कि उसका क्या किया जाए कि वर वी ऑन द रॉन्ग पाथ, डिड वी नॉट हैव द राइट स्किल सेट. ये बहुत ही पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है कि जब आ गया रिजल्ट उसके बाद ही आप एनालिसिस करके बोलते हो कि हाँ यार वेरी गुड. It's a say like which I believe in my life. It's one thing which I believe is that every time we fail, we want people to hear us out. Yeah. We are waiting कि यार मैं किसी को blame कर दूं या मैं कुछ excuse दूं या मैं बताऊं कि मैं ऐसा feel कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं. But that is not the right time to share. Right. I feel that is the time to try again. Because you can fail for 100 times and then you get right one time. Because the day you get right one time, that will be the day when everybody will want to hear you out. So then you start talking about your failures, then you start talking about everything. Because if you're not right, no matter how interesting your story is, no matter how interesting your idea is, nobody's hearing out. Absolutely correct. तो अभी मैंने recently movie देखी, I think Hotstar पे है, called कौन प्रवीण तांबे. Okay. Which is on Praveen Tambe, the cricketer. Yeah. He actually started his IPL career at I think age 42 या 43. तो उसमें उसका कोच का एक डायलॉग है कि याद रखना लाइफ में एंड क्रिकेट में एक अच्छा ओवर सब कुछ पलट देता है. एंड दे शो दैट कि वो एक एक्चुअली एक टूर्नामेंट में जाता है, एक ओवर में he gets the hat trick. I think that was his debut IPL match, after which he just like rocketed and he kept trying, right? He entered at the age of 42 where and they show that in the movie, जो हम ये बात कर रहे हैं, they show that in the movie कि सब लोग कह रहे हैं क्या 42 कोई चांस ही नहीं दे रहा, 35 का भी था तेरा कोई चांस नहीं, you're too old, give up on your dream. But वहाँ पे वो था पैशन उसका, because वो इतना पैशनेट था, it was almost like a wall around him. उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है. उसने जॉब भी वो की जो क्रिकेट में थी. He was like क्या मुझे जॉब भी ऐसी करनी है कि मैं क्रिकेट के पास रहूँ, जितना टाइम हो सकता है उतना खेलूँ. जिन कंपनीज में उससे पहले जॉब की, he was actually playing cricket for those companies also. तो ये जो एक पैशन है ना, ये भी ढूंढना बहुत जरूरी है. एक चीज मैं ये सोचता हूँ कि obviously Indians are doing well all over the world, right? Like US के almost सारी कंपनी, not just tech, even non-tech companies में Indian CEOs हैं. Even in London, finance वगैरह में lot of Indians very successful. So Warren Buffett's successor is also going to be an Indian, right? Yeah, Ajit Jain. Yeah. So तो ऐसा क्यों हो रहा है? I think it's वो जो environment है ना, वो आपको एक फोकस दिला देता है. इट गिव्स यू एन आइडिया कि यार मुझे ना सोसाइटी और इस सब के प्रेशर में नहीं पड़ना. आई नीड टू फाइंड व्हाट आई लव, एंड इफ आई फाइंड व्हाट आई लव, तो जो लोग यहाँ इंडिया में भी हैं वो भी उतने टैलेंटेड हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर जा रहे हैं, हम मैं भी बाहर गया, मैं यहाँ वापस हूँ, कि हम उनमें से कोई ज़्यादा टैलेंटेड कम टैलेंटेड, टैलेंट उतना ही है. लेकिन वो जो एक फोकस और पैशन आ जाता है ना बाहर जाके समझना, तो आप डबल ट्रिपल एनर्जी से काम करते हो. और जैसे ये प्रवीण तांबे की स्टोरी है, फिर फेलियर भी आता है ना, तो ये लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो काम वो कर रहा हूँ जो दिन भर मुझे मजा आता है. इट्स द सेम थिंग आई से अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कि चलेगा ग्रेट एक्सीलेंट, नहीं चलेगा फिर भी आई एम ओके, रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आई वाज डूइंग समथिंग आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट. या आई थिंक आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, बट एट द एंड ऑफ द डे द आंसर और द मीनिंग इज सेम. इज आई जेन्युइनली फील दैट passion is overrated. And this is why I say this. Everybody is trying to think यार मेरे को मेरा passion नहीं मिल रहा, मुझे ना कुछ passionate करना है, मेरे को दुनिया लाना, मेरे को बस वो मजा नहीं आ रहा. But passion कभी मिलेगा ही नहीं. You have to build your passion. What is ultimately passion? If you actually look at people, you got influenced by someone, you got influenced by something, you tried your heart at it, you tried your luck at it, you got little success, and आसपास के लोगों ने उसके बारे में appreciate करना start कर दिया, तो तुमने और किया, फिर लोगों ने और appreciate किया, तो तुम वो करते चले गए. Now you've surrounded yourself around this wall कि यार यही सब चीज मुझे पसंद है, and then now you're so involved in it that you're calling it a passion. So whatever your passion is, it's like you figure out 10 things, which is that one thing where you stick around is what your passion is. So it's what I believe is, ultimately, you're never going to find your passion. You always have to build it. And you build it by your experiences and the things you're interested in. लोग wait कर रहे होते हैं कि यार कुछ तो मेरे को मिले.
कुछ तो ऐसा हो, एंड दे डू दिस टेस्ट ऑनलाइन कि मेरा पैशन क्या है, दे ट्राई टू फाइंड आउट, ऑल ऑफ दैट इज बुलशिट. आई बेग टू डिफर हियर. ओके, मैं ये बोलूंगा कि पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड, एंड पैशन होता है. It's बट in order to build it, I think you can't find passion, you can build passion. Okay, तो मैं इस पे भी आता हूँ. Okay. But what I'll say is कि ये नहीं होना चाहिए कि oh till I don't find my passion मैं कुछ करूँगा ही नहीं. Because the only way you will discover the passion. So I will say कि what you are saying is passion is an invention. I'm saying passion is a discovery. So what I'm saying is कि passion है, वो मेरा पैशन अलग है, आपका अलग है, यू नो एवरीवन, सबका पैशन अलग है, जो भी ये सुन रहे हैं सबका अलग अलग है. आपको वो डिस्कवर करना है कि आपका वो पैशन क्या है. आप कह रहे हो कि नहीं यार पैशन डिस्कवर नहीं होता, पैशन तो इन्वेंट करना होता है. मतलब हम लगे रहेंगे उस पर, और जिस चीज में सक्सेस आना शुरू हुआ हमने इन्वेंट कर लिया अपना पैशन. वो मैं अपने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वाई पैशन इज अ डिस्कवरी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग, हेज फंड्स, आई डिड रियली वेल. आई बिकेम द यंगेस्ट पार्टनर एट स्टार्क इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच वाज द 7th largest hedge fund in the world. I really liked my job. It's very challenging, very interesting, etc. मैं फाइनली बोलूँगा कि you know कहीं पे वो पैशन मिसिंग था, इसलिए मैंने उसको 10+ years किया, which is okay a long time. बट उसके बाद जब मैं यहाँ वापस इंडिया आया, सबने बोला कि यार ये दोबारा कर लो. मेरा कभी एंथु ही नहीं हुआ कि मैं जाके दोबारा करूँ. एंड आई काइंड ऑफ थिंक लाइक कि यार बिकॉज पजल सॉल्विंग कम्स इज समथिंग आई एंजॉय अ लॉट, आई वाज डूइंग इट. बट वो जो एक पैशन था ना, वो एक्स्ट्रा, एक लिटिल एक्स्ट्रा कुछ मिसिंग था, जिसकी वजह से आई डिड नॉट कीप डूइंग दैट ऑलवेज. अगर वो मेरा पैशन होता, मैंने इतना टाइम किया, आई हैड द स्किल, आई गॉट द सक्सेस, तो इट वुड हैव बीन वेरी नेचुरल फॉर मी टू गो बैक एंड से यार मैं व्हाई वुड आई इवन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? तो आई वुड से कि at least in my experience, I had invented that my passion was trading. Actually, then I later discovered that my passion is creating. And even as a kid, and now I go back, अब मैं entrepreneurial journey में हूँ. Now Zionverse company is doing well, but Totality is a 5-year-old company, right? Yeah. We have seen probably a lot more failures than we have seen the recent success that we are getting. But in this entire part, right, I have never for a moment had a regret कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. This does not mean कि there haven't been down moments. This does not mean that there haven't been moments कि बॉस हम कर भी सकते हैं कि नहीं. But when you sit down, there haven't been a moment कि यार क्या कर लिया. I wish मैंने ये नहीं किया होता. अगर वो एक क्वेश्चन जो होता है ना, and the way I will say कि मेरा benchmark क्या था to say कि ये discover हो गया मेरा passion. आज भी even after 5 years, I feel कि every day when I wake up, I'm probably even more excited. मैं जैसे ही उठता हूँ ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑफिस इज 100 नॉट इवन 20 स्टेप्स अवे. बट जब ऑफिस भी था या आज भी है, तो आई गेट अप, आई एम लाइक ऑलवेज इन अ हरी कि यार आई हैव टू रन टू माई वर्क. एंड दैट ये है ना कि आई हैव टू रन टू माई वर्क कम्स बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि यार आज ये करेंगे, आज ये होगा, आज ये बात करेंगे, कम्युनिटी से बात करेंगे, ये प्रोडक्ट होगा, टीम में ये करेंगे, साथ में ये बनाएंगे वगैरह. एंड कभी वहाँ पे वो जैसे when I was giving JEE, like see I wasn't passionate about JEE exam or engineering, right? I would in fact say कि जब मैं अंदर गया तो I was like यार इंजीनियर बनना है. After my 4 years of IIT, I decided कि कुछ भी बनना है, इंजीनियरिंग तो नहीं करना, right? कोई भी करियर ले लेंगे, इंजीनियरिंग का करियर नहीं लेंगे. And that happens with a lot of people. Even a lot of people I talk to now who are going to at least engineering colleges. मैं उन्हीं से मिलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा और लोगों का नहीं पता. But a lot of people say कि I was very passionate about say automotive engineering. मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, वो बताते हैं there is one college which is really renowned for automotive engineering. वो कहते हैं that college kicked the interest out of me, right? तो फिर आपको पता चलता है कि आप पैशन से गए थे, आप इन्वेंट करने गए थे, बट वो हुआ नहीं, एंड एक्चुअली वो कहीं पे स्टम्बल हो गया. बट जैसे मैं अगेन ये कौन प्रवीण तांबे की बात करूंगा कि वो इतना पैशनेट था, उसने कहा जॉब चाहिए, जॉब ऐसे करूंगा जिसमें वो मुझे क्रिकेट खेलने दे कंपनी के लिए. फाइनली उसको वो भी नहीं मिली, तो उसने जाके DY पाटिल स्टेडियम में ही जॉब कर ली. सो दैट ही इज अराउंड क्रिकेट द होल टाइम. वहां पे वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर था, लेकिन वहां पे चाहे जॉब क्रिकेट डायरेक्ट नहीं है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, बट क्रिकेट के अराउंड है. तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु वाज लाइक कि आई लव मूवीज, आई लव मूवी बिजनेस. हाँ, वो एक्टर नहीं है, बट दे विल बी लाइक यार आई जस्ट बी अराउंड इट, क्योंकि वो मेरा पैशन है. तो फॉर मी आई वुड से कि पैशन इज अ डिस्कवरेबिलिटी, इट्स नॉट इन्वेंशन.
Probably. I've still have to discover a lot of things. So Right. I would take your word because you have much more experience in a lot of stuff. Okay. I want to take a quick question and then move to like an interesting part. The quick question is, you have been to all the top colleges in the world. IIT, IIM, LSE, all top notches. Do you only hire from these colleges? Or do you not? So, no. Is your first preference कि मेरे को इन्हीं college से कोई मिले? Absolutely not. So I'll tell you something I've discovered. तो इसमें मैं again 2 या 3 चीजें बोलता हूँ. One thing I've discovered is that attitude is a lot more important than aptitude. आप कैसे learn करते हो, कितना hard work करते हो, कितने enthusiastic हो अपने काम के लिए, is a lot more than कि आपका आज current skill set या hard skill set क्या है. तो अगर हम coding की भी बात कर लें, कि अगर हम किसी को बोलें कि यार ये write this software program, write this algorithm, उन्होंने कर लिया नहीं किया, लेकिन अगर उनका एक एटीट्यूड हमें दिख जाता है कि यार सोच सही रहे हैं, मेहनत सही कर रहे हैं, तो वो सीख जाएंगे. एंड चाहे आपको आज कितना भी आता हो, आप आज अगर आपको लगता है कि आज आप आइंस्टाइन भी हो, ये एक टीम वर्क का इशू है, राइट. एज इन एक आइंस्टाइन को हायर करने से कंपनी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं हो सकती. तो इट डजंट मैटर, वी आर नॉट लुकिंग टू जस्ट हायर आइंस्टाइन आ जाए, बट इफ दे आर विलिंग टू डू टीम वर्क, अमेजिंग, राइट. इसका मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हार्ड स्किल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट प्रायोरिटी इज द एटीट्यूड. तो और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि वी रियली हायर फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स. उसका क्या मतलब कि अगर इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, उसका ये नहीं है कि यार वो हमने कभी सॉल्व नहीं किया, हमें नहीं पता. जैसे ये है कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम आउट, तो वो वाला आंसर नहीं होना चाहिए. इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट वाला नहीं होना चाहिए. इसमें होना चाहिए ओके. अब अगर जैसे मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझे आके मेडिकल की भी प्रॉब्लम दे देगा, तो यार आंसर ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, ना वो मेरा एक्सपीरियंस है, बट मैं बोलूँगा ओके. इसका ये मतलब नहीं कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो आई विल ट्राई इट. आई विल से अच्छा इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते हो या ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते हो, क्या क्या डेटा मुझे चाहिए, हो सकता है कि वो डेटा मुझे मिले. उस डेटा का अगर मुझे पता करना है कि उसका क्या कंक्लूजन, मैं किससे जाके पूछ सकता हूँ. तो ये एक हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो हेनरी फोर्ड ऑब्वियसली क्रिएटेड फोर्ड द कंपनी, द फर्स्ट वन जिसने असेंबली लाइन प्रोडक्शन की थी, तो बिकेम रियली रियली फेमस. उसके बाद अ लॉट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कॉपिंग दैट मॉडल, राइट. एंड हेनरी फोर्ड वाज नॉट दैट एजुकेटेड, तो मीडिया यूज्ड टू राइट अ लॉट अगेंस्ट हिम कि अरे आप तो एजुकेटेड नहीं हो, आप कैसे बना लोगे ये वो. तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंसर बोला कि आ जाओ, जिसको जो सवाल पूछना है ना पूछ लो, मैं सबके जवाब दे दूंगा, एंड दैट इज माई चैलेंज टू यू. तो उन्होंने बुलाया और उसने कॉन्फ्रेंस में हर एरिया के एक्सपर्ट को बैठा दिया. तो मीडिया कोई क्वेश्चन पूछता है, वो कहता ये जवाब देगा. वो कोई क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है ये वाला जवाब देगा. वो कहते हैं ये क्या है, आप तो बता ही नहीं रहे, आप तो खुद तो जवाब बता ही नहीं रहे. कहते हैं यही तो मेरा स्किल है, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि किसको और क्या पता है. तो मुझे सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता, और अगर उसको पता है तो मुझसे काम करा लूंगा. दैट इज दैट attitude and first principle thinking. You have been in the finance world. Okay. You have then like led in a hedge fund. You've done all of that, trader, hedging, all of that. Now you're in the metaverse. You're in the world of Web3. यहाँ पर भी पैसे का और बहुत ज़्यादा गेम है. So ऐसा क्या framework है which people should use in order to make money? अगर किसी को पैसे कमाने तो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होता है कि ये चीज मैं अगर स्टेप 1 2 3 ये करूंगा, मैं किसी भी बिजनेस में अप्लाई करूं, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करूं, तो मैं पैसा कमा सकता हूं. ओके. तो इसमें भी 2 अलग अलग फ्रेमवर्क से आप जा सकते हो. ठीक है. मैं एक पहला फ्रेमवर्क पे आता हूँ जो एक एक्सपर्ट लेवल का फ्रेमवर्क होता है. वो ये होता है, इन द फाइनेंस वर्ल्ड सबसे पहला क्वेश्चन यू ऑलवेज आस्क इज कि व्हाट डू आई नो दैट अदर्स डोंट नो. मुझे ऐसा क्या पता है जो औरों को नहीं पता. व्हाई डू यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इज कि यार जैसे स्टॉक्स की बहुत बात होती है आजकल इंडिया में, मैं देखता हूँ ट्विटर पे भी बहुत होती है, यूट्यूब पे भी लोग कहते हैं आईटीसी को यहाँ खरीद लो, वो सिगरेट बनाते हैं, ये बनाते हैं. तो सोचना ये चाहिए कि यार अगर ये जो आप बता रहे हो वो सबको पता है, तो स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जानी चाहिए थी. और अगर सबको वो पता ही है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंट मार्केट है, कि स्टॉक उतने वैल्यू पे होगा, सबको ही पता है, तो वो ऑलरेडी प्राइस में है, तो ऊपर क्यों जाएगा स्टॉक. तो या तो आप ऐसे एक्सपर्ट हो कि आपको कुछ पता होना चाहिए जो औरों को नहीं पता, राइट. और वो आती है कुछ एक्सपर्टीज से.
तो वो आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, आपको कुछ ज़्यादा एनालिसिस पता है, आप सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ अलग जानते हो, FMCG इंडस्ट्री के बारे में कुछ अलग जानते हो, कंपनी के ऑपरेशन के बारे में कुछ अलग जानते हो, स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हो जो और लोग नहीं जानते। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हेज फंड्स वगैरह, जैसे हम लोग जिनका फुल टाइम काम है वो ये करते थे, वॉरेन बफेट जिनका फुल टाइम इन्वेस्टिंग का काम है वो ये करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज किंग, कि इन्फॉर्मेशन इज किंग, हम एनालाइज करेंगे, दिन भर हम एनालिसिस करते रहते हैं, राइट। तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि जैसे स्टॉक ट्रेडिंग बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा, एंड लॉट ऑफ पीपल से कि यार हमने तो ये स्टॉक खरीद लिया, आंसर की ये क्यों खरीदा, इसका प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे लगता है कंपनी में खरीद लूंगा। अरे यार, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो सबको पता है होगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स अच्छी होगी अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके खरीदने से क्या हो जाएगा, राइट। एंड आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो हेज फंड्स वगैरह में बैठे हैं, जो 16-16 घंटे इस पे काम कर रहे हैं दिन भर, उनसे आपकी क्या बेटर एक्सपर्टीज है या नहीं। तो एक तो ये फ्रेमवर्क है कि व्हाट डू आई नो दैट अदर्स डोंट नो। सेकंड एक्सपर्टीज है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो देयर आर, ये एक अलग प्रिंसिपल होता है कि जिसे बोलते हैं ना कि स्विमर कितना भी स्ट्रांग हो, इफ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड it's very difficult to swim. Yeah. And even if you are a weak swimmer, if you swim with the tide, you will go very quickly. चाहे हम सेलिंग भी करें तो हवा की डायरेक्शन से ही के साथ ही जाते हो आप. You never try to go in the opposite direction. So the other answer could be कि you bet on a trend. For example, this is something I love कि राकेश झुनझुनवाला says कि यार ये इंडिया का टाइम है, इंडिया बढ़ने ही वाला है. वॉरेन बफेट says कि यार इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यूएस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ही बेट्स. And he always advises people कि go do a SIP in index mutual funds or index ETFs. Yeah. You do not have the expertise कि आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे. अगर आपकी बेट है कि ट्रेंड है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया में है, सेंसेक्स, निफ्टी, कोई भी ETF में आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ. डोंट ट्राई टू गेट एन एक्सपर्टीज कि कौन सा स्टॉक वगैरह पिक करना है. अगर आपको ये लगता है सिमिलरली Web3 में कि यार आई थिंक दिस एरिया इज गोना ग्रो, मुझे लगता है मेटावर्स ग्रो करेगा, तो कुछ कुछ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर लो. अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार लेयर 2 सॉल्यूशंस बढ़ेंगे, तो कुछ कुछ लेयर 2 में इन्वेस्ट कर लो. अनलेस आपको ये लगता है कि हाँ मुझे सारा पैसा इथेरियम में डालना है, या सारा पैसा मैटिक में डालना है, सारा पैसा ज़ायनवर्स में डालना है, तो अगर आपको इतनी कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है तो थोड़ी ट्रेंड भी पता होना चाहिए और एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, राइट. तो ये दो चीज़ें होंगी. अब ये डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, किसका क्या स्किल सेट है. फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे शुड एनालाइज कि ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, एंड देन जस्ट गो विद द ट्रेंड एंड प्लेस थोड़ी डाइवर्सिफाइड बेट्स. एंड फॉर अ फ्यू पीपल जिनके पास वो स्किल है, टाइम है, फ्रेंड्स की नॉलेज है, अपनी नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज वाली बेट ले. ये मेरा सजेशन होगा. सो मेक सेंस. ओके, इसका मेरा काउंटर क्वेश्चन है. एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मेटावर्स. अब फेसबुक जैसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग मेटावर्स में बहुत रेलेवेंट बनने वाले हैं, फ्यूचर इज मेटावर्स. अब सबको पता चल गया ये ट्रेंड है. लेकिन अगर हर रूम में बैठा इंसान या हर कोई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, सब ये समझ के इन्वेस्ट करने लग गए मेटावर्स में, एवरीबडी बिलीव्स दैट दिस इज गोना बी द बिग थिंग, डू यू थिंक देन इट विल बिकम अ बिग थिंग? क्योंकि सब थोड़ी सही हो सकते हैं, और अगर सब सही हो गए तो फिर इतना रूम ही नहीं बचेगा सब लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए, तो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे. गुड पॉइंट. तो पहले मेटावर्स से पहले मैं एक क्रिप्टो का एग्जांपल लेता हूँ. क्रिप्टो का जो पूरा आइडिया है वो अ डेकेड ओल्ड है. मेटावर्स का आइडिया भी एक्चुअली मोर देन अ डेकेड ओल्ड है, बट एटलीस्ट जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो अब स्टार्ट हुई है. हाँ, अभी न्यू है. लेट्स सी, फॉर अस इट्स न्यू, वेरी वेरी न्यू है. हाँ. तो क्रिप्टो का जो है कि बिटकॉइन, इथेरियम, दे हैव बीन अराउंड फॉर अ डेकेड. उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टोटल है इज आई थिंक स्टिल अराउंड 2 to 2.5 ट्रिलियन. ठीक है. अगर हम यूएस की ही स्टॉक मार्केट ले लें, खाली यूएस के जो नैस्डैक वगैरह वगैरह, दे विल बी 50-100 ट्रिलियन, राइट. तो अगर मैं ये देखूं, एवरीवन, हम लोग क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में है तो हमें लगता है यार सब तो क्रिप्टो में पैसा डाल रखा है, तो बचा कौन है. बट अगर हम ये देखें कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो सबका पैसा आ ही नहीं सकता उसमें. तो नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी इज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, नॉट इवन दैट, राइट. तो इसका मतलब यह है कि डेटा इज टेलिंग अस कि सब इन्वेस्टेड नहीं है. वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उतना मार्केट कैप ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता प्योर स्टैटिस्टिक्स से. वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के पास है. जो पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास पैसा है. जो हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, उन लोगों के पास पैसा है. वो अभी क्रिप्टो में नहीं आए. तो अब आप इमेजिन करो कि अगर उन्होंने 1, 2, 3, 5% भी पैसा डाल दिया, तो
इसी में अगर जो एनालिसिस है बिटकॉइन का एक मेथोडोलॉजी है उसको प्राइस को करने की, जो स्टॉक फ्लो कि कितना उस हिसाब से बढ़ेगा, उस हिसाब से तो बिटकॉइन इज वेरी अंडर वैल्यू. मतलब आई एम नॉट, सबके अपने अपने फ्रेमवर्क हैं, ये लोग इसको ये लेके नहीं जाए वो बिटकॉइन इज अंडर वैल्यूड. आई पर्सनली बिलीव इट इज अंडर वैल्यूड. आई एम लॉन्ग बिटकॉइन, बट उस फ्रेमवर्क से भी, स्टॉक फ्लो से, बिटकॉइन इज वेरी वेरी अंडर वैल्यूड. कि अगर लोगों का पैसा मूव हो गया इन क्रिप्टो तो द वैल्यू इज गोना शूट अप लाइक अ लॉट, राइट. तो लोग नहीं है अभी इसमें. अभी क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, फन है, इंटरेस्टिंग है, तो मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है. अब वो क्योंकि मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ ही क्रिप्टो है, राइट, और कुछ है नहीं. प्लस हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप भी Web3 और क्रिप्टो बहुत देख रहे हो, तो हमें ये लगता है कि मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, आईफोन, राइट. आईफोन की पेनिट्रेशन क्या लगती है आपको कि इंडिया में क्या है इन टर्म्स ऑफ फोन मार्केट? हाँ, 10%, 15%. It's I think less than 3% and it's decreasing. That is it, right? But आपने तो खैर 10-15 बोला, वो तो बहुत अच्छा गैस है. जब मुझसे लोगों ने पूछा, मैं यार ऑलमोस्ट सबके पास है, बट अगर तुम सवाल पूछ रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि शायद 50% होगी, क्योंकि मैं तो जितने लोगों को देखता हूँ सबके पास आईफोन है, राइट. तो जब मुझे पता चला कि 3%, मैंने कहा ओ माय गॉड ये कैसे. अब वो यही है, दिस इज द बायस दैट वी गेट, कि जितना हमारे को सैम्पल डेटा दिखता है, जो हमारे फ्रेंड्स दिखे जिनके साथ हम गए, उनमें तो हमें लगा आईफोन ही है, हमने पूरा डेटा देखा नहीं. इसका मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ. यूएस में जो ऑनलाइन सेल्स है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो कितनी होगी परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स एज अ, तो मैंने कहा यूएस, अब कोरोना से पहले यूएस, उसमें तो सभी करते होंगे शॉप ऑनलाइन, मतलब मेरे तो सारे फ्रेंड्स हैं. अब इंडिया में सब कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन करता हूँ तो यूएस में तो यूएस में तो सभी. मैंने कहा कौन जाता होगा वहां पे, मैंने कहा 60-70% होगी शायद. Actually, the number, when I looked at the data, pre-corona, that number was just 11%, 11%. Amazon, जो इतनी बड़ी कंपनी है, Amazon in the US has 50% of the online sales market, right? This was pre-corona. कोरोना के बाद जब लॉकडाउन भी हो गए तो ये परसेंटेज नंबर 27% गया था खाली, और अब वो अराउंड 25% है. आज भी जब हमें ये लगता है कि शायद ही कोई, कि शायद किराना शॉप पे कोई जाता होगा, वो भी ये ये जेप्टो वेप्टो ने उसका भी खत्म कर दिया कि 10 मिनट में ही सब कुछ आ जाएगा, तो किराना स्टोर भी क्यों जाना. लगता है ऐसे कि उसके अलावा कौन जाता होगा. इंडिया में, यूएस में आज भी 75% है. तो क्या होता है कि ये जो डेटा है ना, हमें लगता है कि जितना हम देख रहे हैं उतना ही डेटा है. तो दैट इज द अदर थिंग जो हमें ये लग रहा है कि जो हम लोग क्रिप्टो और Web3 में है, इसलिए ये हमें पूरा का पूरा डेटा देखना पड़ेगा टू मेक इट अ फैक्चुअल एनालिसिस कि अभी क्या है. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इस मार्केट में. अगर आप ये देखिए जेपी मॉर्गन 3 साल पहले, जेमी डायमंड जो उनके हेड हैं और जेपी मॉर्गन, वो दोनों कहते थे बेकार है, ना बिटकॉइन ना Web3, कुछ नहीं होने वाला, फैड है. फिर जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट्स छापनी शुरू कर दी, Web3 बिटकॉइन ये वो. जेमी डायमंड ने बोलना शुरू कर दिया कि होगा, मुझे तो बेकार लगता है, लेकिन हम एज अ बैंक तो इसमें काम करेंगे. अब रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली कि मेटावर्स इज गोइंग टू बी अ $1 ट्रिलियन बिजनेस बाय 2030, विच इज 8 years अवे. अभी आप और मैं जितने भी लोगों से जाता हूँ ना, वो मुझसे पूछते हैं क्या मेटावर्स होगा, तो मैं ये बोलता हूँ यार वो ट्रेन तो कब की जा चुकी. फेसबुक जो दुनिया की बिगेस्ट Web2 कंपनी है, उसने अपना नाम बदल दिया. वो ये कह रहा है कि हमारी जी पूरी बेट है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, राइट. इज अ वेरी स्मार्ट गाय. और वहां पे वो अकेला बेट नहीं ले रहा होगा ना, उसके पास भी बहुत स्मार्ट टीम होगी, इन्वेस्टर्स होंगे जो समझ रहे होंगे. जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक, पूरा अपना एनालिसिस बदल दिया उन्होंने, और अब वो ये कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ मेटावर्स बन जाएगी 8 years में. और अभी भी हम इंडिया में ये बातें कर रहे हैं कि क्या होगा क्रिप्टो, क्या होगा मेटावर्स का. बात ये नहीं कि क्या होगा, अब सवाल ये है कि कितना बड़ा होगा. दैट वो क्वेश्चन तो कब का खत्म हो चुका. होगा तो होगा, कौन सा होगा और कितना बड़ा होगा इज द क्वेश्चन. बिल्कुल, होगा तो है ही, वो तो गिवन है. अब वो जो ऐसा आपने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया ना अपने लिए, मैं उसी एग्जांपल पे अभी ये बोलूंगा कि ये तो ट्रेंड है, हो गया, ये तो बड़ा बनेगा ही. जब आपने इंस्टाग्राम पे बैठ ली होगी, आपको भी नहीं पता होगा कि कितना बड़ा बन जाएगा, राइट. इतना तो नहीं सोचा था जो आज हो गया. करेक्ट, बस यही है. मैं भी यही बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो कितना बड़ा बनेगा, बट ट्रेंड तो है ही है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द ट्रेंड. Makes sense. Now that you have read a lot of data, okay,
startups के बारे में, your different industries, you read lot, you have an understanding. What do you feel right now in India? ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें जो जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोगों को लग रहा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई या उनको लग रहा है कि होगा ही नहीं कभी? मेटावर्स इज डेफिनेटली वन, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर देयर, यू ऑपरेटिंग. मेटावर्स तो बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज यू जस्ट टॉक्ड अबाउट इट दैट इट्स गोना बी $1 trillion इंडस्ट्री. एंड आई डोंट थिंक इंडिया में तो ज़्यादा कोई हार्डकोर रेलेवेंट स्टार्टअप्स भी हैं एट प्रेजेंट हु आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड. नहीं, एक है आई थिंक टोटलिटी कॉर्प के नाम से जो ज़ैनवर्स बना रही है. बहुत रेलेवेंट और बहुत बड़ी स्टार्टअप. No, go ahead, tell me. So what all industries are there जिसमें लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज? अगर देखो, ऑब्वियसली आई एम बायस्ड बिकॉज मैं तो मेटावर्स और वेब3 बोलूंगा, बट अदरवाइज अगर हम एक और स्टेप बैक लें, जैसे जो राकेश झुनझुनवाला का व्यू है, आई ऑल्सो एग्री विद दैट व्यू. अगर हम इंडिया का वो देखें, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, जापान की तो पॉपुलेशन ही डिक्रीज हो रही है, जर्मनी कनाडा में अगर आप इमिग्रेशन हटा दो तो उनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, राइट? वहाँ पे इसलिए वो लोग अभी भी इमिग्रेशन को इतना सपोर्ट करते ही जा रहे हैं. तो एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि आप सिर्फ पॉपुलेशन से ग्रोथ लाना सबसे आसान है, राइट? अगर 100 लोग काम कर रहे थे, कल 200 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जीडीपी डबल हो गया, और भी डबल होगा क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ और ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे. ग्रोथ होगी तो आप पैसा भी ज़्यादा कमाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, एक्सेट्रा. तो इंडिया में वो ग्रोथ हो रही है, तो एक स्टोरी अच्छी हो रही है. पॉइंट नंबर 1. एक और सबसे अच्छा एनालिसिस ये है कि जो जीडीपी पर कैपिटा है, कि हम कितना कमाते हैं पर पर्सन, उसका हमेशा ये ट्रिगर बोलते हैं कि अगर $3,000 के करीब को हम क्रॉस करते हैं, दिस नंबर कई रिपोर्ट्स कहती हैं 2,000, कई रिपोर्ट्स कहती हैं $4,000, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ $3,000 पर ईयर से अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है. उसका ये मतलब कि उसके बाद सडनली लोग की कंजम्पशन, लोगों की प्रोपेंसिटी कि अबे हमें और चीज़ों पे स्पेंड करना है, वो आने लग जाती है. और ये हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है, राइट? अगर मैंने जितने यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल में जितने भी लोगों से बात किया है, गेमिंग में स्पेशली, तो गेमिंग में इंडिया नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस. चाइना के बाद इंडिया आता है. नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड. नंबर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे हम शायद 51st या 52nd है, लेकिन नाउ वी आर क्लाइंबिंग, राइट? तो इंडिया में हमेशा यह था कि यार लोग तो खेल लेंगे गेम, लेकिन पैसा कोई नहीं देगा. यूट्यूब पे व्यूज आ जाएंगे, पैसा कोई नहीं देगा. क्लैश ऑफ क्लैन, विच इज माई फेवरेट मोबाइल गेम, मैं 12 साल से खेल रहा हूँ. 25% ऑडियंस क्लैश ऑफ क्लैंस की इंडिया से है. क्लैश ऑफ क्लैंस का ओवरऑल आई थिंक एनुअल रेवेन्यू 700 मिलियन है. 4 मिलियन रेवेन्यू खाली वो इंडिया से कमाते हैं. तो मतलब आधा % रेवेन्यू इंडिया से, 25% ऑडियंस इंडिया से, राइट? लेकिन ये सब चेंज हो रहा है. तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ना, कि लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोपेंसिटी कि हमें पे करना है, हम चाहते हैं कि हम पे करें. यूट्यूब पे अगर लोग आए तो सुपर चैट में हम देंगे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन आएगी तो हम पे करेंगे. अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के ये इतने सारे आ गए हैं. पहले द कैन था, पता नहीं कितने लोग उसके लिए देते होंगे. अब द कैन है, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट है, कैप टेबल है, कितने सारे आ गए हैं, एंड ट्रैकर है. सबके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स कितने सारे लोग ले रहे हैं. तो ये जो मॉडल है नेटफ्लिक्स, आई थिंक लास्ट आई चेक, नेटफ्लिक्स वाज द हाईएस्ट मनी मेकिंग ऐप इन इंडिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक बिजनेस, खाली मोबाइल में जितना सब्सक्रिप्शन खर्चा हो रहा है, राइट? डेटिंग एप्स, टिंडर वगैरह पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं. तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है. हम लोग खाने में ज्यादा अच्छा जा रहे हैं. वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट इज कि पहले म्यूजिक के लिए कोई पे नहीं करता था, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पे सब लोग पैसे दे रहे हैं. बिल्कुल, एवरीबडी हैज बॉट इट. आई थिंक everyone here must have bought at least once, and I never thought कि मैं कभी दूंगा नहीं. अब मेरे पास YouTube का भी प्रीमियम है म्यूजिक के लिए, मेरे पास Spotify का प्रीमियम, मेरे पास iTunes भी है. करेक्ट. एंड ये काफी कॉमन है, एंड ये अभी हुआ है इन लास्ट 1 year. बिल्कुल. एंड मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग टू दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और जब ये आएगा तो ये जो मोनेटाइजेशन है ये इंक्रीज होगी बहुत ज्यादा, एक्सपोनेंशियली. अगर वो इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ लोग बढ़ रहे हैं, मोनेटाइजेशन बढ़ेगी, तो सारे सेक्टर अच्छा करेंगे. तो मेरा ये आंसर है कि ट्रेंड इज ग्रेट फॉर इंडिया. तो ये तो ऑलमोस्ट वैसे है कि इंडिया पे अगर आपको बेट लेनी है तो दिस इज द टाइम, आप बेट लेते रहो. इंडेक्स पे लगा दो, ज्यादा दिमाग नहीं होता. इंडेक्स पे लगा दो, डाइवर्सिफाई करके लगा दो. फिर उस पे आता है कि क्या आपकी किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है जो आपको समझ में आता है. जैसे जो लोग रियल एस्टेट करते हैं वो ये बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट के अलावा हमें तो कुछ चीज समझ नहीं आता, हम नहीं लगाएंगे.
जो क्रिप्टो करेंगे वो ये बोलेंगे कि हमें तो क्रिप्टो ही समझ में आता है, हम उसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे. दैट्स ओके. अगर आपको ट्रेंड राइट आपने पकड़ लिया प्लस आपने अपनी एक्सपर्टीज भी जोड़ ली, तो देन योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विल बी अ लॉट मोर. तो वो आप उस एरिया में लगा दो पैसे. बट अगर आपको ये है कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट एरिया क्या है, आपकी कोई स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर आप इंडेक्स पे लगा दो, निफ्टी पे लगा दो. अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप स्टार्टअप्स में भी डाल रहे हो, तो स्टार्टअप का भी पोर्टफोलियो बना लो. Okay, let's talk about specific things because you talked about कि हर sector almost बढ़ सकता है, हर जगह इंडिया का टाइम आ रहा है. Let's talk about in the room कि what all sectors we are interested in. Okay, one is the Web3 space, which is definitely growing. Second is creator economy. Do you feel that creator economy, creator tech is gonna go bigger कि अब हो गया, अब और नहीं बढ़ पाएंगे लोग? नहीं, क्रिएटर इकोनॉमी तो अभी शुरू हो रही है. वो इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज मोनेटाइजेशन. सी, अब क्रिएटर इकोनॉमी में अब जेन्युइन करियर बनना शुरू हुआ है. सी, जब आईपीएल आया था तो मैं ये कहूंगा कि इट्स लाइक 2008 में शायद आईपीएल लॉन्च हुआ था. तो क्या हम तब ये कहते कि यार क्रिकेट का हो गया बस अब ये है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दैट इज द सिमिलर मूवमेंट कि अब लोगों को जेन्युइनली लग रहा है कि क्रिएटर बनने से करियर बन सकता है. तो नाउ पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग दैट बेट कि हाँ यार ये हम बना सकते हैं. जब क्रिएटर्स और अच्छे आएंगे तो और भी ऑडियंस उसको उसमें इंडल्ज होगी, और ऑडियंस इंडल्ज होगी तो और मोनेटाइजेशन बढ़ेगी. अभी तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना है. तो अभी तो वो जो बिग बैंग है, जैसे आई थिंक मैंने ये नंबर खुद नहीं देखा बट कल मुझे किसी ने बताया कि जो लेटेस्ट 2 ये आईपीएल टीम्स हैं वो 8,000 करोड़ की बिकी है. वर्सेस जो मेरे ख्याल से 2008 में था, इट वाज लाइक 1/10 दैट अमाउंट एक्सेट्रा. तो मतलब कितना ग्रोथ हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि आईपीएल आने से, क्योंकि अब एक्चुअली लोगों को लगता है कि यार क्रिकेटर बन गया तो खाली ये नहीं है कि पैसा और फेम तभी मिलेगा जब मैं नेशनल टीम में हूँ. आईपीएल में भी आ गया तो इट्स वेरी वेरी गुड. अगर आईपीएल के रणजी में भी खेला तो वेरी वेरी गुड. उसके नीचे वाले लेवल पे भी आया तो भी वेरी वेरी गुड. आई कैन सस्टेन माई सेल्फ, आई विल हैव डिसेंट फेम, डिसेंट मनी. नाउ गेट टू द जूस ऑफ इट. द जूस इज मेटावर्स होगा, ये हमें पता है. क्या है, व्हाट इज मेटावर्स? होगा क्या, मतलब ये क्या है? तो ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं डिजिटली. ठीक है, चाहे चैट हो, सोशल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, गेमिंग हो, शॉपिंग हो, एजुकेशन हो, सब ऑनलाइन हो रहा है. जूम कॉल्स हो, हाइब्रिड वर्क अब हो गया एक्सेट्रा. लेकिन अभी हम देखें तो जो पूरा वेब 2 वर्ल्ड है, जो करंट मोबाइल ऐप्स वगैरह है, वो सारा ना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए है. कि अमेजोन ने आपका वो बना दिया कि आप जल्दी से प्रोडक्ट तक पहुंच सको. फेसबुक ने फीड बना दिया कि आप जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो पहले मिल जाए. गूगल सर्च ने दिखा दिया कि यार फटाफट आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएं जो आप सर्च कर रहे हो. जब हम रियल लाइफ में जाते हैं, अभी भी लोग जैसे ये कहते हैं कि यार अगर मैं ग्रोसरी खरीदने जाऊँ ना, स्टोर में जाता हूँ ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है. वो पता चल जाता है मुझे कि क्या चाहिए था. अमेजोन पे जाता हूँ तो एफिशिएंसी है, बट स्टोर में जाके एक अलग फीलिंग आती है. हेंस इवन इन द यूएस 75% आज भी ऑफलाइन है. राइट. तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वी आर नॉट जस्ट मशीन्स. हम एक एफिशिएंसी के लिए नहीं जी रहे. एक्सपीरियंस, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए जो हमारे सारे सेंसेस हैं वो अगर एंगेज होंगे तो वो एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो हम इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. राइट. तो मेटावर्स का आइडिया आएगा क्यों? क्योंकि इट इज़ टेकिंग अस मोर टूवर्ड्स व्हाट द रियलिटी इज फॉर थिंग्स वी आर ऑलरेडी डूइंग. जो कुछ लोगों को ये लगता है कि यार वो जैसे मूवी आ गई रेडी प्लेयर 1, उसमें वो VR हेडसेट पहन के बैठे हैं, सबको लगता है कि फ्यूचर ही होगा मेटावर्स का, ऐसे ही काउच पे बैठे हुए होंगे, सारा रूम बिखरा हुआ होगा, बस VR हेडसेट पहन के मैं एक बहुत ही बढ़िया दुनिया में हूँगा और मुझे पता ही नहीं है रियल दुनिया का. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप 7, 8, 6, 12, 14 घंटे डिजिटली स्पेंड कर रहे हो तो वो डिजिटल एक्सपीरियंस जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो बहुत बेटर होने वाला है. इट इज गोइंग टू टेक यू क्लोजर टू रियलिटी. एंड व्हेन आई से क्लोजर टू रियलिटी डज नॉट मीन वर्चुअल रियलिटी. In fact, मेरे हिसाब से VR is going to be a very small play in the metaverse. For most people, they think कि पूरा metaverse VR के थ्रू होगा. My bet and what we are doing in Zionverse, our bet is कि mobile devices के थ्रू ही होगा. उसके भी क्या reasons हैं? यार एक तो आप देखिए कि VR is so inconvenient. एक तो मैं headset पहनूं, अपने घर में ही हूँ, अगर अब मैं कैब में हूँ, मेट्रो में हूँ, क्लासेस के बीच में 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता. तो वो कन्वीनियंस नहीं है. इट्स सो इरिटेटिंग कि मेरे सर पे है. इट्स सो एक्सपेंसिव.
नाउ इमेजिन प्लेइंग PUBG एंड टेकन वेयरिंग अ VR हेडसेट. मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि अरे टेकन खेलना है. आफ्टर अ व्हाइल आई विल बी टायर्ड. मैं 10 घंटे तो नहीं खेल सकता. चलो गेम नहीं होगा. अच्छा मॉल, अब मॉल में घूम रहा हूँ यार, एक मेरे पास ऑप्शन है कि मोबाइल में मैंने अपना नेविगेशन ऐसे प्रेस किया, मैंने चलना शुरू किया. दूसरा मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ. क्यों? व्हाट इज द पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है, राइट? फॉर पीपल जो गेमर्स हैं, उन्हें ये पता है कि अगर जब मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा होता हूँ ना, क्लैश ऑफ क्लैन तो 3D गेम भी नहीं है, 2D गेम है. जब मैं खेल रहा होता हूँ तो जैसे मेरी फैमिली में सबको पता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ अटैक चल रहा है, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर सब बैठे हैं यहाँ पे, अटैक चल रहा है, क्योंकि मैं इतना इमर्स्ड हूँ, मैं उस समय उसके अंदर घुसा हुआ हूँ. उसके लिए मुझे VR की जरूरत नहीं थी. तो जब लो एफर्ट, लो कॉस्ट, कन्वीनियंस मोबाइल दे रहा है, तो VR का कुछ आएगा नहीं. बेटर क्या होगा? अगर हम ये देखें गेमिफिकेशन और इमर्जन का ट्रेंड, एजुकेशन गेमिफाई हो रही है. रॉबिनहुड ने इन्वेस्टमेंट US में गेमिफाई कर दी. गूगल पे ने UPI पेमेंट्स गेमिफाई कर दी. कैसे? हर पेमेंट के बाद स्क्रैच कार्ड ले लो. स्क्रैच कार्ड लेने से क्या फायदा होता है कि जब मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ मिलेगा पैसा, कुछ नहीं मिलेगा पैसा. पैसा मिलना तो इंपॉर्टेंट था, बट अमाउंट कितना मिलना था वो भी इंपॉर्टेंट है. वो बोल सकते थे ना 2% कैशबैक, जो बहुत क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता. मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे पता है, प्रिडिक्टेबल है. गेमिंग में जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो जो ये मैं आपको एक और इनसाइट बताऊंगा. हमने इससे पहले प्रोडक्ट बनाया था योवो, जो एक वर्टिकल फीड इंटरैक्टिव वीडियो प्रोडक्ट था. Okay. तो हम ये सारे सोशल मीडिया एप्स का फीड स्टडी कर रहे थे. तो उस फीड में ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स पे, कि अगर तो वो एक जगह जाएं और उसको प्रेस करें तो उनको खाना मिलेगा. लेकिन अगर वो एक जगह जाएं और उसको प्रेस करें, कभी खाना मिले, कभी खाना ना मिले, कभी खाना बहुत ज़्यादा मिले, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. तो अगर आप सारे सोशल मीडिया फीड्स के एल्गोरिथम देखोगे, वो ऐसे बनते हैं कि क्या वो आपको आइडिया ये होगा, लोग ये सोचेंगे कि सारा अच्छा कंटेंट दिखा दो यार अभी. बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट अगर रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको 6 चीजें दिखाते हैं, उसमें से एक अच्छी होती है, एक ओके होती है और 4 खराब होती है. क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता जब आप फीड कर रहे होते हो, आप कहते हो बेकार कंटेंट, बेकार, ओ अच्छा कंटेंट. तो इसलिए स्क्रैच कार्ड में वो जो आइडिया है ना कि ओ माय गॉड लॉटरी इफेक्ट, कुछ मिल गया, वो जो इमोशनल हाई है वो बहुत है. इसलिए ये जो गेमिफिकेशन पेमेंट्स की भी हो गई, गूगल पे आपको लेवल और बैजेस देता है UPI पेमेंट करने के लिए. अगर मैं आपको वैसे रोकूं और मैं बोलूं यार आप मास्टर UPI पे मास्टर हो, आप इतने लोगों को UPI पेमेंट्स करते हो, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. लेकिन जो आदमी खुद अपने आप सोचेगा यार मास्टर बन गया, अब वो मास्टर किस भी चीज का बना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को अच्छा लगा, खुद को अच्छा लगा तो सॉल्व हो गई बात. पेमेंट्स इज अ यूटिलिटी. तो यही जो रियलिस्टिक इमोशनल एंगल है, यही ऑलरेडी मेटावर्स कर रहा है. तो मेटावर्स जो है, मैं कहूंगा कि दैट इज द अल्टीमेट सुपर ऐप. टाटा न्यू भी सुपर ऐप लॉन्च की है, बट जो अल्टीमेट सुपर ऐप होगी वो मेटावर्स होगा. अगर आप 10 सेंट का भी सक्सेस देखो चाइना में, विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सुपर एप्स वर्किंग इन आवर एंटायर वर्ल्ड. US में भी ऐसी नहीं है. 10 सेंट क्यों काम करा? क्योंकि चैट भी उस पर है, गेम्स भी उनके पास हैं, शॉपिंग भी उनके पास हैं, शॉर्ट वीडियो एप्स भी उनके पास हैं. तो उन्होंने एंटरटेनमेंट, सोशल, शॉपिंग, फाइनेंस सबको कंबाइन कर दिया. एंड एक्चुअली उसका डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन मेटावर्स है. सो इज दैट तो ओके. नाउ व्हाट इज मेटा बिल्डिंग देन? वो भी सिमिलर चीज करने वाला है, पूरा कॉमर्स को ऊपर लेके जा रहा है. देखो उनका आइडिया तो यही है, क्योंकि जो उनका फिलॉसफी है वो ये है, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म पे उन्हें पता है कि मोनेटाइज कैसे करना है, लोग आएंगे, एंगेज होंगे, उनको हम एड्स बेचेंगे. ठीक है. मैं इसमें 2 चीजों से डिफर करता हूँ. पहला ये कि वो बना रहे हैं एक सेंट्रलाइज मेटावर्स. आई थिंक द वर्ल्ड विल बी डिसेंट्रलाइज. फर्क क्या है? फेसबुक इज बिल्डिंग, जो फेसबुक का आता है, जो फेसबुक का DNA है कि वी विल बिल्ड द एक्सपीरियंस, हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे, आपका डेटा हमारा, हम जो करना चाहें वो करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता आप बाहर चले जाओ. हम बना रहे हैं कि यार ऑटोनोमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका भी ट्रेंड एक्चुअली ऑलरेडी आ चुका है. अगर हम ये देखें, जो पुरानी कंपनीज थी उसमें फैमिली के या जो फाउंडर्स थे उन्हीं के पास इक्विटी होती थी, किसी और को नहीं मिलती थी. अब जो स्टार्टअप्स हैं वो ESOPs देते हैं. क्यों देते हैं? फ्री में देते हैं. क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि यार टीम को अगर मिलेगा ESOP तो वो और मेहनत करेंगे, सक्सेस का चांस और ज्यादा है. अब आप इमेजिन करो कि मैंने अपने कस्टमर को भी ESOPs दे दिए, मैंने अपने सप्लायर को भी ESOPs दे दिए,
जो मेरे लिए मार्केटिंग कर रहा है मैंने उसको भी ESOPs दे दिए है, मैंने टीम को भी ESOPs दे दिए है। तो अब कस्टमर भी कह रहा है कि यार इसका सक्सेस हुआ तो मैं भी वेल्दी हुआ। ये खाली लॉयल्टी नहीं है, शेयर दे दी एक तरीके से। हाँ, तो मेरी ओनरशिप भी हो गई। सप्लायर कह रहा है हाँ यार मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ उसमें पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन अब मैं और मोटिवेटेड हूँ। जो मार्केटिंग कर रहा है वो और मोटिवेटेड हो गया। मैं फ्रंट बेसिस पे तो मैं पैसे कमा ही रहा हूँ, बैक एंड में मुझे जो ये थोड़े से जो 10-15-50 हज़ार जो भी शेयर मिले इसकी वैल्यू और बढ़ रही है, तो मैं इसी से बिजनेस करूंगा। बिल्कुल। तो अब आप ये इमेजिन करो कि अगर स्टार्टअप्स ने ESOP सिर्फ टीम को दिए, अब अगर मैं सबको दे दूं तो वो बिजनेस कितनी जल्दी बढ़ेगा। इसलिए अगर Web2 बिजनेसेस को सिर्फ 8 से 10 साल लगे यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न बनने में, Web3 बिजनेसेस बहुत जल्दी करेंगे। जो Web3 बिजनेसेस यहाँ पहुंचेंगे वो बहुत रैपिड पेस पे पहुंचेंगे, और इसीलिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वही वाली बात है कि आप अगर किसी घर में रहते हो एंड आप उसको रेंट कर रहे हो तो ठीक है, आप अपना आपका घर है आप उसको ठीक रखोगे, लेकिन आप कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं करोगे। आप कहोगे कि यार मैं रेंट पे करता हूँ, ये घर है, बट अगर आप उसके ओनर हो, चाहे आप लोन पे भी ले रखा हो घर पे, तो लोन का भी इंटरेस्ट रहे हो, लेकिन अब मैं ओनर बन गया, कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं ओनर बन गया। अब मैं केयर करूंगा, अरे दीवार खराब हो रही है, कम्युनिटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सिक्योरिटी सब सही रहे, मैं देखता हूँ कि गलत क्या हो रहा है। रेंटर है, अरे क्या फर्क पड़ता है, अपने को 6 महीने बाद यहाँ इस सोसाइटी से जाना है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो सोसाइटी अच्छी बन गई, सोसाइटी अच्छी बन गई तो उसके लोग अच्छे आएंगे, लोग अच्छा आएंगे, सोसाइटी अच्छी रहेगी, रेट्स भी बढ़ेंगे, आपको भी फायदा हो गया। तो यही है फर्क। एंड दिस हैव सीन मेरी पर्सनल लाइफ में। सो देयर वाज अ हाउस लास्ट ईयर आई वाज लिविंग इन ऑन रेंट, और उसमें एसी के पानी की वजह से ना वो थोड़ा सा वो खराब हो गया दीवार, राइट। मैंने अरे 6 महीने छोड़ना है ना, क्या करूं। बिल्कुल 6 महीने थे, मुझे रहे हुए उधर 3 महीने हुए थे, पर मैंने 6 महीने बाद छोड़ना है। हाँ। मैंने छोड़ो ना, चलेगा। बिल्कुल सेम जब मैं मेरे घर गया, विच वेयर माय फैमिली लिव्स इंदौर, वहां पे अगर मैं कुछ खराब देखता हूँ तो मैं हाथ के हाथ फोन करता हूँ, इसको अभी ठीक करो अभी। बिल्कुल। तो यही तो सबसे बड़ा फर्क है। और अब आप इमेजिन करो कि ये सबके लिए होगा, सबको ओनरशिप मिलेगी, और ये ओनरशिप तभी हो सकती है जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सो पहले मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि जो फेसबुक यूएस में बना रहा है, क्या ज़ायनवर्स इंडिया में वही बना रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो फेसबुक बना रहा है, क्या ज़ायनवर्स उसी रिजल्ट की तरफ जा रहा है लेकिन उसका वे डिफरेंट है? नहीं, आई थिंक हमारा विजन ही अलग है। ओके, सो ज़ायनवर्स और फेसबुक का विजन अलग अलग है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो हम जो बना रहे हैं, बना यही रहे हैं। आई थिंक एक पार्ट जो सेम है वो ये है कि आई थिंक सबकी जो बेट मेटावर्स में है वो यही है कि दिस विल बी द सुपर ऐप, दिस विल बी द इमर्सिव सुपर ऐप, दिस इज द फ्यूचर। बट उसका एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है। हम ये कह रहे हैं कि यार ओनरशिप, और जो मैंने आपको अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फेसबुक कह रहा है ये हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेसबुक कह रहा है कि VR इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं कह रहा हूँ VR तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी बोला, मोबाइल इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, एक तरीके से विजन अलाइंड है कि मेटावर्स बन रहा है, बट तरीका उनका बिल्कुल अलग। हम बना रहे हैं इंडियन कल्चर के अराउंड, वो वैसे ही बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जो उनको समझ में आता है। हम क्यों इंडियन कल्चर के अराउंड बना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसका भी एक एग्जाम्पल लूँ कि मैं लंदन में एक डेकेड प्लस रुका हूँ, तो वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जो कमी होती है, जो सारी NRI कम्युनिटी को लगती है, वो एक होता है मिसिंग ऑफ अपनापन। एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग मिसिंग होती है। चाहे बहुत अच्छी कंट्रीज है, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सक्सेस मिलता है लोगों को, लेकिन एक हमेशा एक अपनापन की फीलिंग मिसिंग रहती है। अपने देश जैसी बात का। बिल्कुल। एंड वो खाली फैमिली की नहीं है। ये नहीं है कि अरे मेरी फैमिली पास होती तो हो जाता। नो, आई आल्सो फील द सेम थिंग। एवरी टाइम आई गो देयर फॉर ट्रैवलिंग आल्सो इन 10 days आई एम लाइक, चाहे हम यहाँ आके बोले यार क्या ट्रैफिक है, क्या ये खराब है, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये गाय क्यों घूम रही है, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो एक अपनेपन की फीलिंग मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि ये जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा सबसे जो मैं गेम ज्यादातर खेलता हूँ वो क्लैश ऑफ क्लैंस है। यार अब मैं बड़ा इमोशनली अटैच हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस से, क्योंकि मैं 12 साल से खेल रहा हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ऐसा गेम बनता जो मेरा कॉन्टेक्स्ट, जो मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, जिसको मेरे को पता है जिस चीज़ के बारे में, उससे बनता। अब ये लोग गॉड ऑफ वॉर वगैरह बनाते हैं वाइकिंग्स पे, सब खेलते हैं, इंडिया में भी बड़ा वो है। तो यार उन लोगों का वो कल्चर है, उनको वो समझ में आता, हमें वो अडॉप्ट करना पड़ा क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी। तो हमारे को तो वो बनाना चाहिए ना, प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी ही अच्छी बनाएंगे हम, उससे भी बेटर बनाएंगे, लेकिन एक कंटेंट भी ऐसा होगा जिसमें हमें वो अपनेपन की फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए हम इंडियन कल्चर पे बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट। ज़ायनवर्स इंडियन कल्चर के ऊपर गेम्स बना रहा है, गेम्स, 3D वर्ल्ड्स, इवेंचुअली हम कॉमिक्स, फिगरीन्स, पूरा ये सारा कैप्चर करेंगे। तो अभी एट दिस पॉइंट
do you have apps or do you have like how can I get into this Zayanverse कि ऑनलाइन ही है अभी, कैसे करना है? तो अभी तो हमने अभी तक एक दिसंबर में लास्ट ईयर लक्ष्मी NFT लॉन्च की थी, वो हमने 4 करोड़ की सेल की सारी इंडिया में. अब हम त्रिमूर्ति NFT लॉन्च कर रहे हैं अभी क्योंकि पेमेंट गेटवेज का जो भी इशू आया है आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता ही होगा जो ये फॉलो कर रहे हैं कि किसकी वजह से है. तो उसकी वजह से लॉन्च की डेट्स में थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ने अभी वो कर दिया. बट नेक्स्ट हमारा त्रिमूर्ति NFT लॉन्च होगा. फिर हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा गेम, पहला गेम विच इज कॉल्ड रणभूमि. द गेम इज एक टीम डेथ मैच गेम कि हम 5 लोग हैं, आप 5 लोग हो, हम एक दूसरे का गेम्स खेल रहे हैं डेथ मैच मोड में. बट गेम इज अराउंड कुरुक्षेत्र. तो आई कैन प्ले with a bow and arrow, I can play with a gada, I can play with a sword, I can play with a bhala, I can play as an assassin. तो कंटेंट, तो आइडिया ये है कि यार अच्छा गेम में तो टीम डेथ मैच होता है, पजल होता है, यही होता है, लेकिन जो हमें कंटेक्स्ट चाहिए, जो एक इमोशनल कनेक्ट है, गॉड ऑफ वॉर में आपको कनेक्ट है. जो लोग वैलोरेंट खेलते हैं, वैलोरेंट इज ऑल्सो क्वाइट वो, जितने कैरेक्टर्स होंगे वैलोरेंट के, उनको लोगों को कनेक्ट आ रहा है कि यार आई आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर मोर. बट वाई आर वी बीइंग, मतलब वो आउट ऑफ चॉइस, मतलब लैक ऑफ चॉइस, हमें इन गेम्स की तरफ ही जाना पड़ा है, राइट? तो वो जो कंटेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस कंटेंट की ही चीज क्यों कंज्यूम करूं. अगर हम ये देखें, माफिया की स्टोरीज ले लो, राइट? इटालियन माफिया की स्टोरीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जापानीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडियन माफिया की स्टोरीज इंडिया में बहुत फेमस है. हम लोग जो आज अगर आप देखो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, सारा कंटेंट वही है जो इंडिया का बन रहा है. हम सारे लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो ये गेमिंग में भी, मेटावर्स में भी नेचुरली आएगा ही आएगा. सो नाउ मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ज़ायनवर्स इंडियन कल्चर को लेके उस पर गेम्स बना रहा है, उसके कंटेंट बना रहा है, उसको इंटरैक्टिव बना रहा है, ताकि हम लोग हमारा जो कल्चर है, हमारी चीज़ें एटलीस्ट मोर देन इट्स अ कल्चरल बैटल, इट्स अ ऑप्शन, इट्स अ प्रेफरेंस कि यार मैं बचपन से यही सब सीख के बड़ा हुआ, तो मुझे और इसमें इन्वॉल्व होके इसमें और आके खेलना है और गेम्स करना है और मजे करने हैं, राइट? तो एक तो ये मेरी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम कि मुझे किसी की नई हिस्ट्री नहीं जाननी, तो मेरे पास बहुत इजी है. सो नाउ व्हेन आई एम प्लेइंग गेम, नाउ व्हेन आई एम वोटिंग फॉर समथिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग माय पेरेंट्स टू आल्सो वॉच दिस. नहीं तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि जब गेम चला रहे पता नहीं क्या खेल रहा है, हट जाओ. सो एक तो मेरे फैमिली कॉन्वर्सेशंस अप हो गई, मेरे लिए कभी नया हिस्ट्री सीखना मुझे वापस नहीं पड़ा. एंड थर्ड इज यू से इट्स बिल्ट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, राइट? तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, दे विल एक्चुअली मेक इनफ मनी इन दिस, बिकॉज वो इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्हें टोकन्स मिलेंगे या उन्हें कोई एक ईसॉप जैसे एक शेयर जैसे कुछ मिलेगा. तो क्या मिलेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. तो हमारा जो ये इक्विवेलेंट है आपका ओनरशिप का, उसका नाम है शक्ति टोकन्स. ओके. तो अगर आप गेम खेलेंगे, स्टेकिंग करेंगे, जो हमारी त्रिमूर्ति NFT भी आ रही है, वो ऑब्वियसली त्रिमूर्ति हैं तो हमारे 3 गॉड्स, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु. उसके अलग अलग रेरिटी है. रेरिटी में ये होगा कि जितना आप हायर लेवल पे जाएंगे उतने आपको एक्सेसरीज, वेपन्स, बेटर कॉस्ट्यूम्स, एस्थेटिक्स मिलेंगे. लेकिन साथ में आपको मिलेगा शक्ति टोकन्स. शक्ति टोकन है हमारा इक्विवेलेंट ऑफ द ईसॉप. ओके. द टोकन्स व्हिच वी विल द टोकन्स व्हिच, सो लोग खेलेंगे अगर गेम तो उन्हें टोकन्स मिलेंगे. लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी टोकन मिलेंगे. लोग अगर रेफर करेंगे औरों को तो भी टोकन मिलेंगे. लोग अगर सोशल पे ज़ायनवर्स के और कम्युनिटी की हेल्प करेंगे तो भी उन्हें टोकन मिलेंगे. तो अगर मान लो मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे मजा आ गया और मैं अभी 1000 टोकन खरीद लेता हूँ, 1000 शक्ति टोकन खरीद लेता हूँ, राइट? देन आई एम अ पार्ट ऑफ इट. अब मैं उस 1000 शक्ति टोकन से एक तो इनसाइड द गेमिंग वर्ल्ड आई कैन बाय फ्यू थिंग्स, प्लस मैं जितना गेम खेलूंगा, मैं जितने लोगों को बोलूंगा और जितने लोग मेरे साथ इसमें खेलेंगे, तो जितने और नए लोग आएंगे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी. तो मेरे लिए जो 1000 टोकन है, दैट माई मनी विल ऑल्सो ग्रो. करेक्ट. बट मैं इसका सस्टेनेबल तरीका ये बोलूंगा कि एक तो ये तरीका है जो थोड़ा सा क्रिप्टो में है कि सप्लाई लिमिट कर दो, डिमांड बढ़ाते रहो, पैसे बढ़ जाएंगे. ओके, वो है. बट दूसरा जो सस्टेनेबल तरीका है कि ज़ायनवर्स के वर्ल्ड में हम एक पूरी इकोनॉमी बना रहे हैं, राइट? विच इज, जैसे मैंने कहा कि सुपर ऐप, जो पूरा सुपर ऐप है, सारा डिजिटल बिजनेस उस पर होगा. अगर आप गेम खेलते हो तो गेमिंग का जो स्पेंड है वो आप ज़ायनवर्स में कर रहे हो. किसी ने एक अच्छी कॉस्ट्यूम बनाई, वो अगर आपने खरीदी, वो हो गई. लैंड की सेल्स हुई, वो हो गई. इवेंचुअली Amazon जैसी एप्स को हम इंटीग्रेट करेंगे. आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ICICI बैंक का एक अपना एरिया है जिसके अंदर आप जा रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो.
तो चाहे आपको सोशली कनेक्ट करना हो, नेटफ्लिक्स टाइप कोई वीडियो देखनी हो साथ में, हमने ऑलरेडी वीडियो इंटीग्रेट कर रखी है, Amazon जैसा बिजनेस करना हो, साथ में गेम्स खेलने हो और लोगों का प्रोडक्ट खरीदना हो, ये सारा इस सुपर ऐप में होगा. हर ट्रांजैक्शन पे वी विल चार्ज अ कमीशन. दिस इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, बट लेट्स से वी आर चार्ज 5%. ठीक है, दिस इज स्टिल टू बी फाइनलाइज्ड. 5% में से 1% जाएगा एक्सपेंसेस पे करने के लिए, 4% का 3% जाएगा एक ट्रेजरी में. तो जो भी टोकन होल्डर्स हैं वो एक्सेस उनको ट्रेजरी के पैसे का, और 1% जाएगा कि शक्ति टोकन्स ओपन मार्केट में बाय होंगे. तो टोकन की क्या वैल्यू है कि रेवेन्यू जो कमा रही है कंपनी, 5% का जो 4% रेवेन्यू है वो टोकन होल्डर्स को जा रहा है. तो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ज़ायनवर्स जितना पॉपुलर होता जाएगा, उस पर इतने ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे, तो उतना ही वेल्थ एंड पैसा टोकन होल्डर्स कमाते जाएंगे, बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ ज़ायनवर्स. एंड प्लस ऑब्वियसली यू आर नाउ, बिकॉज यू आर ओनर, यू आर ऑल्सो गवर्निंग कि नहीं यार ऐसा मत करो, ऐसा करो. लाइक से बन गया, आपकी वोटिंग बन गई, आप बता रहे हो कि क्या करना है. सो टेक्निकली इफ आई बिलीव इन दिस आइडिया राइट नाउ, तो अगर मैं ये आइडिया बिलीव करता हूँ और मैं इसका अगर एक छोटा सा शेयर होल्डर बन जाता हूँ, देन एवरी टाइम यू मेक मनी और द कंपनी मेक्स मनी, और तुम जितनी वैल्यू बढ़ो मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, मेरा भी आई विल आल्सो मेक. करेक्ट. एंड दिस इज, इसके लिए मुझे कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, आई कैन डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. बिकॉज यूजुअली यही होता है राइट, कि अगर आप किसी स्टार्टअप में, दिस बेसिक, लाइक लेट्स एक्सप्लेन द बेसिक वर्ड. पहले ऐसा होता था कि आपको है ना, कंपनी जब तक पब्लिक आती तब तक वेट करना होता था. तो सबको लग रहा है यार जोमेटो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जोमेटो तो बढ़ने वाला है, लेकिन तुम जोमेटो को कुछ नहीं खरीद सकते, तुम बाय नहीं कर सकते जब तक जोमेटो पब्लिक में नहीं आती. और जब वो पब्लिक में आती तब वो इतने $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे आती है कि तुम तब खरीदो या नहीं खरीदो, उस टाइम पे तुम्हारी रिवॉर्ड्स बहुत कम होता है कि यार मल्टीफुल 10x 20x 100x में पैसा नहीं कमा पाऊंगा अब. तो वो ऑप्शन खत्म हो गया कि IPO वाला. अब ऐसा होने लगा कि अगर आप थोड़े से कनेक्टेड हो तो आप स्टार्टअप्स में पैसा डाल सकते हो. आपका थोड़ा अगर कनेक्शंस अच्छे हैं या आपके पास ज़्यादा पैसे एक साथ 10 लाख रुपए डालने के लिए हो, तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. उसका भी ये एडवांस वर्जन है कि अगर आज मुझे 10 लाख भी नहीं है और मुझे सिर्फ फर्स्ट डे पे स्टार्ट करना है टू अर्न, एंड इफ आई बिलीव कि ये स्टार्टअप बढ़ेगा या मेटावर्स बनेगा या ये जो कंपनी है ये मेटावर्स में कुछ और बनाएगी, सो आई कैन इन्वेस्ट एंड मेक अ पाई आउट ऑफ इट, कि जब कल पे ये जिस दिन IPO हो जाए 10 साल बाद, तब मेरा पैसा हो सकता है 1000x हो जाए या 100x हो जाए या कुछ भी हो जाए. इसका एक और एडवांस लेवल भी है. तो ये तो है ही जो आप कह रहे हैं. तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि 2013 में जब मैं वापस इंडिया आया था, तो आई हैड बॉट माय बोट के हेडफोन्स, एंड तब इतना पॉपुलर नहीं था बोट जितना आज तो बहुत पॉपुलर है. एंड आई लव द हेडफोन्स, और मैंने पता नहीं कितने लोगों को बोला होगा कि यार ये खरीदो. एंड आई हैड एक्चुअली सेंट एन ईमेल जिसका आज तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिला कि यार अगर मुझे पैसा डालना है तो कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि आई वाज ये तो चलेगी राइट. तो एक तो ऑप्शन ये है कि परमिशन लेस वे से, बिना किसी को कोई कंपनी की परमिशन लिए या कुछ ऐसा लिए टोकन्स खरीदे, आपने पैसा डाल के आप ओनर बन गए. लेकिन यहाँ पे आप अपना लेबर एफर्ट के लिए भी टोकन्स में आपको मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल ज़ायनवर्स, मतलब दिस इज बाय द वे ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेटावर्स. तो ज़ायनवर्स में हम 52% टोकन्स जो हैं आपको एफर्ट के लिए देंगे, पैसे के लिए नहीं देंगे. अगर आपने गेम ज़्यादा खेला तो वो आप जो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके लिए भी हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं. अगर आपने और लोगों को रेफर किया उसके लिए भी हम आपको टोकन दे रहे हैं. अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको स्टेक किया, जितने भी लोग Web3 और क्रिप्टो में उन्हें स्टेकिंग पता होगा, उसके लिए भी हम आपको टोकन्स दे रहे हैं. खाली ये नहीं है कि आपको टोकन्स खरीदने की जरूरत है, लेबर और एफर्ट और जो आप हमारे लिए काम कर रहे हो इनडायरेक्टली, उसके लिए भी आपको टोकन्स मिलेंगे. तो तुम्हें कुछ भी फ्री में करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें टाइम, अगर अब तुम दे रहे हो, टाइम भी तुम्हारा फ्री नहीं है, तुम्हें उसके लिए भी बिल्कुल टाइम की तो वैल्यू होनी चाहिए. और ये तो होना ही चाहिए कि अगर मैं खेलता जा रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस और मैं आ रहा हूँ, तो क्लैश ऑफ क्लैंस को भी तो फायदा है ना कितना. और मैं तो पता नहीं कब से, जब से उनका मंथली पास लॉन्च हुआ है, मेरा तो फर्स्ट ऑफ द मंथ पे मोस्टली मैं तो खरीदता रहता हूँ राइट. और वो 400 रुपये का होता है. तो अगर मैं खरीदता जा रहा हूँ, मेरे लेवल बढ़ रहा है. अगर मुझे भी ये होता कि कुछ मुझे भी वापस मिल जाता, मैं अभी भी शायद क्लैश ऑफ क्लैंस छोड़ूंगा कि मैं 12 साल से खेल रहा हूँ, बट एक और मोटिवेशन मिल जाता ना मुझे कि यार ये तो बहुत सही है. मैं ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है. मैं 15-20 क्लैन बैठ के ये फुल टाइम काम मोर देन यू. आई थिंक आपके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं. लाइक आई कैन सी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके मॉम डैड बहुत खुश हो जाएंगे, चलो
मेरा बच्चा दिन भर खेल रहा है, लोग, बिकॉज आई नो दिस इज स्वीट एज, स्पेशली 12th के बाद से कॉलेज के बीच में जो टाइम होता है वेयर मोस्ट ऑफ पीपल प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड पेरेंट्स आर अनॉयड कि यार बस ये क्या करता है, दिन भर गेम खेलता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, उनको भी ये गेम खिलाता है, करेक्ट, सब बैठ के यही खेल रहे हैं PS पे, करेक्ट, तो अब वो करेगा तो एट द सेम टाइम ही इज मेकिंग मनी टू डू ऑल ऑफ दिस, करेक्ट। एंड सी लाइक ये लोग ये वाली चीजें लोग बहुत बोलते हैं ई स्पोर्ट्स वालों के लिए, बट ई स्पोर्ट्स वालों का एक लेवल जो है वो हम सबका लेवल नहीं होता, मेरा तो नहीं हो सकता, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले वैलोरेंट या CS:GO लेवल का, राइट, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये अब अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, आपका वो लेवल होना जरूरी नहीं है, अच्छा वो लेवल होगा तो आप अलग कमाई कर लोगे, अलग प्रोफेशन बना लोगे, लेकिन आप अगर दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी इन्वॉल्व हो तो भी आप ओनर बन जाओगे। तो टाइम पास में मैं गेम खेल रहा हूँ, भले मैं उतने अच्छे लेवल का नहीं खेलता हूँ, तो भी आई विल मेक इट, तो भी यू विल मेक इट, करेक्ट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड एग्जैक्टली लाइक आई सेड, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या मतलब सारा मेटावर्स और Web3 तरफ क्यों जा रहा है कि अगर आपको ओनरशिप दे दी तो आपका इंसेंटिव बढ़ गया तो आर चांसेस ऑफ सक्सेस आर इवन मोर, क्योंकि आप करोगे मेहनत। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, हमारी ज़ायनवर्स की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जिसमें आपके भी कुछ टीम के लोग ऑलरेडी पार्ट है, मुझे पता चला, एंड इट वाज वेरी ग्रेट टू नो दैट। तो उसमें मैं ये आपको बोलूंगा कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि यार आप हमारी ना एक्सटेंडेड टीम हो। हम ज़ायनवर्स में ऑफिशियली 50 लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम 200 लोगों की वो है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक तो शक्ति टोकन हमने लॉन्च भी नहीं किए, बट वो लोग इतने इन्वॉल्व हैं डिस्कॉर्ड पे कि वो 2-2 पेज के मुझे DMs लिखते हैं कि मैंने इस वीकेंड ये वाला सिस्टम एनालाइज किया, उसमें ये अच्छा था, ये खराब था, ज़ायनवर्स को इनमें से ये चीज़ें करनी चाहिए और आप इसको एनालाइज करो। मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, मैं वही पूरा डाउनलोड करके अपनी टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, लेट्स लुक इनटू दिस। मैंने बहुत बार अपनी AMA कॉल्स में ये बोला है कि इट इज़ क्रेजी। बहुत लोग मुझे आके बताएंगे कि अच्छा ज़ायनवर्स का नाम आपने ऐसे रखा, इसको ऐसे सोचो, शक्ति टोकन का लोगो है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। हमने जो त्रिमूर्ति NFT है, 1 महीना इटरेशंस किए हैं विद द कम्युनिटी, कि हम जाते हैं कम्युनिटी को बोलते हैं कि यार ये हमारा प्रपोजल है, आई थिंक दिस इज द वे वी शुड डू इट। वो हमें फीडबैक देते हैं एकदम से, और इट इज़ अ वेरी आई विल से इमोशनली चार्ज्ड फीडबैक विच आई रियली लव, क्योंकि मैंने हमेशा कम्युनिटी को बोला कि जैसे क्रिकेट है, अगर इंडिया हारती है या जीतती है तो वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगता है वो। तो इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनली चार्ज कि ऐसे ही करना चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं चलने वाला, फिर वो नहीं हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, देन दे डू इट। तो ये जो ओनरशिप का एस्पेक्ट है, अभी तो टोकन भी नहीं मिल रहे, बट दे ऑलरेडी नो कि अगर हम उनकी बात सुन रहे हैं और प्रोडक्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दे नो दे आर गोइंग टू गेट दैट ओनरशिप। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है टू अस एज एन इकोसिस्टम ऑलरेडी। That's crazy. अच्छा, क्विक क्वेश्चन फॉर एवरीवन, अब इतने लोगों ने टाइम दिया, इतने लोग स्पेंड कर रहे हैं, दे आर वाचिंग दिस नाउ, हमें शक्ति टोकन कैसे मिलेगा? हाउ आर वी गोना गेट इट? आई वांट शक्ति टोकन्स। अभी तो सबसे आसान तरीका है कि जैसी त्रिमूर्ति NFT लॉन्च होती है, आप त्रिमूर्ति NFT खरीदिए, त्रिमूर्ति NFT से आपको शक्ति टोकन्स मिलेंगे। त्रिमूर्ति मिले भी, शक्ति टोकन्स भी मिले, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिले, उसके बाद एक 3D अवतार भी मिलेगा। मतलब इससे ज्यादा तो जान ही ले सकते हो आप। All right, this is the last question which mostly I ask a lot of people is, what's in it for you? Why are you doing all of this? क्यों कर रहे हो ये सब? तो मैं ये बोलूंगा, जैसे हमने पैशन की बात की, तो चीजें क्रिएट करना मेरा एक पैशन है। मतलब आई एम रियली पैशनेट कि मुझे ना कुछ बहुत इम्पैक्टफुल क्रिएट करना है, एंड मैं इम्पैक्ट को वैल्यूएशन वेल्थ में खाली नहीं गिन रहा। ऑफ कोर्स दैट इज अ गुड ऑब्जेक्टिव स्कोर टू नो कि एक्चुअली वो इम्पैक्ट है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज इट कांट बी कि यार मुझे तो लगता है कि हमने कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल बनाया, कुछ उस पर ऑब्जेक्टिव मेजर भी होना चाहिए। तो सिर्फ उसकी वजह से एक स्कोर है, जो भी वैल्यूएशन होगी, जो भी वेल्थ बनेगी, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग। तो मुझे उस क्रिएशन प्रोसेस में बहुत मजा आता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मुझे Web3 में मजा क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का, और तीनों चीज़ों में बहुत एंजॉय करता हूँ, विच इज़ कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग। एंड जब हम ये गेमिंग कर रहे हैं, जो आपने भी पहले बोला कि इसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमी है, किसको कितनी ओनरशिप देनी है, उसके क्या करने से, वो ओनरशिप के लिए जब हम रेवेन्यू में कमीशन लेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप ऑलमोस्ट एक डिजिटल नेशन बना रहे हो, राइट? तो जैसे इंडिया में टैक्स से आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हो, और लोग जितना अच्छा करेंगे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। सिमिलरली आप भी एक
हम भी एक ये ज़ायन वर्स में डिजिटल नेशन बना रहे हैं जहाँ पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों को इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, क्रिएटिवली, इवेंचुअली स्पिरिचुअली भी अच्छा लगेगा. And I think that is what drives me, and that is what is the thing that has been driving me for the last 5 years in this journey. So the idea of creating a new world which is more immersive and stands with certain value is what drives you a lot. First is the idea of just creating what you think. Like, there is no bigger high for me than imagining something in my head and then working with my team to actually see it being created. Right? वो मेरे ख्याल से हर एक कोई भी क्रिएटर या आर्टिस्ट हो, वो उसकी ड्रीम है कि थॉट को एक्चुअली टैंजिबल बना दिया. हमने सोचा कि यार ये ऐसे ऐप बन सकता है, ये ऐसे प्रोडक्ट बन सकता है, लोग इसको ऐसे करेंगे, वो दिख रहा है होते हुए. इट इज मतलब देयर इज नो अदर हाई आई थिंक दिस इज अ ग्रेट, मतलब सबसे बड़ी किक है. Absolutely. एंड देन Web3 वर्ल्ड एंड मेटावर्स इज अ आइसिंग ऑन द केक. कि मतलब इस एरिया इज सो इंटरेस्टिंग. आई एम सेइंग कि अगर ये Web3 वगैरह नहीं होता, उससे पहले भी हम apps वगैरह बना रहे थे, businesses बना रहे थे, because creation was the core which was driving that passion. It's intense. I want to end this with a personal quote which I believe in, ki when every time people used to ask me, what do you want to do? What do you want to do? And I used to say, I'm figuring out. I don't know. But even then I'm figuring out. One day in my life, I want to sit back and look at something I've created and say, I thought about it once, it's here now. Right. Yeah. And that's what I think is driving you. That's ultimate goal for everyone. Correct. Thank you so much for doing this, man. Thank you so much. This is great insights. I love your insights on a lot of things. I see that passion, and I'm gonna still think about discovery, invention, US, India, Shakti tokens. There are a lot to consume. There's a lot of things in my head right now. I have to rewatch this at least 2 times to take that all in into 2 different parts. But thanks for doing this. I love it. Thank you so much for having me here.